जम्मू कश्मीर दे विच लगियां पाबंदियां सरकार छेती ही हटाउण जा रही है। यह दावा जम्मू कश्मीर के चीफ सैकटरी BVR सुब्रमण्यम ने किया है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक स्कूल कॉलेज खोलने की शुरुआत कर दी जाएगी। इस तो इलावा मोबाइल और इंटरनेट सेवावां भी शुरू हो जाएगियां। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर च पाबंदियां नूं हटाउण दा फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के चीफ सैकटरी BVR सुब्रमण्यम ने इस गल का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक स्कूल कॉलेज खोलने की शुरुआत कर दी जाएगी। मोबाइल इंटरनेट सेवावां भी शुरू हो जाएगियां। After today's Friday prayers, which the immediate reports has gone off quite peacefully right through the state, there would be an easing of restrictions in the next few days in an orderly way. Schools will be opened after the weekend, area-wise, so that children's studies do not suffer. As movement restrictions are removed, area by area, movement of public transport will be allowed in these areas. Government offices have been made fully functional from today, and the attendance in many offices is quite high. Telecom connectivity, which has been a point of sore concern, will gradually be eased and restored in a phased manner, keeping in mind the constant threat posed by terrorist organizations in using mobile connectivity to organize terror actions. चीफ सैकटरी ने दावा किया कि इन्हां सारियां पाबंदियां दौरान कोई जानी नुकसान नहीं होया, किसी नूं ज़्यादा सट नहीं लगी। हालांकि अतवादियों ने नुकसान करने लई काफ़ी जोर लाया, पर अजिहा नहीं होण दिता गया। इसलिए लोगों के समर्थन नूं वेखदिआं पाबंदियां हटाईआं जा रहीआं ने। That there has been not a single loss of life. I repeat, there has not been a single loss of life or serious injuries to anyone during the course of maintaining peace and order. We have prevented any loss of human life despite concerted efforts by terrorist organizations, radical groups, and continuing efforts by Pakistan to destabilize the situation. Keeping in view the evolving situation, as well as the cooperation of the people in maintaining peace, we are now taking measures to ease the restrictions in a gradual, calibrated manner. ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ अतवादी संगठनों ਨੂੰ कमजोर किया गया है ताकि लोगों के विकास लिए मौके पैदा किए जा सकन, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मुहम्मद संगठन ते सरहद पार अतवाद कश्मीर ਨੂੰ प्रभावित कर रहा ਸੀ। A fortnight ago, some major decisions were taken with a view to promoting the long-term welfare of the people of all the regions of the state and to ensure better governance and accelerated development. The government's approach was guided by the conviction that all-round development was the most credible solution to address separatist sentiments that were propagated by vested interests. Such sentiments were being used to legitimize a policy of cross-border terrorism that has cost the lives of thousands of inhabitants of the state and the country. The intent of terrorist attacks was to create an atmosphere of fear and terror and to block development that could unleash opportunities for the younger generation of people in the state. Among the groups that are well known for sponsoring violence, तर्क दिता गया कि सरकार ने ਜਿਹੜੇ फैसले ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ,
ਬੱਤੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। Following violent incidents. This time, these measures have been taken by way of precaution only, keeping the safety and well-being of public at large. At the same time, steps were taken that there was no shortage of essential supplies. Medical facilities and hospitals continued to function. Electricity, water supply, and sanitation services are maintained. Pilgrims going on Hajj and returning from Hajj were specifically facilitated, and people associated with providing all these services have free movement. Periodically, there were relaxations in some of these restrictions to enable people to come out for their daily requirements. A media center has been opened. ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੌਣਕ ਪਰਤੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੋਣੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। जम्मू कश्मीर चो धारा 370 हटाउण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई हुई। धारा 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट च कई पटीशनां पाईआं गईआं ने, पर शुक्रवार 2 पटीशनां ते सुनवाई हुई। इन्हां चों एक पटीशन कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन दी सी। इस पटीशन का धारा 370 नाल कोई लेना देना नहीं सी। ये पटीशन सिर्फ मोबाइल इंटरनेट अते पत्रकारां नूं आउण जाण लई पाई गई सी। इस पटीशन ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार नूं हाले समा होर मिलना चाहिए। ये कश्मीर टाइम्स की जो श्रीनगर एडिशन है वो अखबार नहीं छप पा रही और मीडिया के ऊपर बहुत इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि मीडिया का काम ठप हो गया है कश्मीर वैली में। ना तो रिपोर्टर अपना जाकर खबर ला सकते हैं, ना वहां पर अखबार प्रिंट हो पा रही है कश्मीर टाइम्स की श्रीनगर एडिशन। ये बातें हमने अदालत के सामने अनुराधा भसीन की याचिका के थ्रू रखी है कि जो भी हालात है उसमें मीडिया की फ्रीडम आज तक कभी नहीं रोकी गई। कश्मीर में मुश्किलात पहले भी आए हैं, 88 से लेके 2019 तक ये पहली बार है कि लैंडलाइन और प्रेस का मूवमेंट को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। इसलिए वहां पर एक इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट हो गया है, एक कम्युनिकेशन शटडाउन हो गया है। इसलिए हमने ये याचिका मूव करी थी। जब सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना था कि अखबार में आज ही कुछ न्यूज़ आइटम आया है कि लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड को रिस्टोर कर दिया जाएगा शाम तक ही, तो वो स्टेट को शायद हमें थोड़ा सा मौका और देना चाहिए। हमने यही बातें बार बार रखी कि मीडिया की फ्रीडम से वहाँ पर जो हालात हैं वो सुधरेंगे अगर लोगों तक खबर पहुँचेगी, इसलिए इसको रिस्टोर करना जल्द से जल्द ज़रूरी है। दूजी पटीशन वकील ML शर्मा दी सी जो धारा 370 हटाउण के खिलाफ सी। चीफ जस्टिस ने पटीशन करता तो पूछा कि किस तरह की पटीशन है। कोर्ट ने कहा कि तुहाडी पटीशन अजिही नहीं जिस ते सुनवाई की जा सके। चीफ जस्टिस मुताबिक वो पटीशन नूं खारिज भी कर देंदे, पर अजिहा करन नाल इस मामले 'च दायर होर कई पटीशनां ते असर पवेगा।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने कहा कि हमारे जो मुल्क का आइन है उसमें लिबर्टी को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए माननीय अटॉर्नी जनरल ने ये कहा मेरी याचिका पर कि कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी कश्मीर के अंदर। अगर वे कह रहे तो मुझे उन पर पूरा एतबार है, मुझे मौजूदा हुकूमत पर पूरा एतबार है, मुझे वजीर आजम पर पूरा एतबार है और उन्हें कुछ दिनों का मौका देना चाहिए। कुछ दिनों बाद 2 हफ्ते बाद हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका सुन रही है, हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन कि क्या फंडामेंटल राइट्स वहां पर अब लागू हो रहे या नहीं हो रहे। ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार को और ये कानून में ये दायित्व बनता है, आइन में ये दायित्व बनता है कि अकाउंटेबिलिटी हो। अकाउंटेबिलिटी वजीर आजम से लेना, अकाउंटेबिलिटी मौजूदा हुकूमत से लेना, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और अधिकार दोबारा हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। पर उधर दूजे पासे इस मामले ते सियासत भी जारी है। जम्मू कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और जम्मू कश्मीर की आवाम को मालूम है कि धारा 370 उनके पक्ष में कभी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को एक मौका वो समझते हैं कि उनको बहुत बड़ा मौका है, इस विषय को लेकर पूरी दुनिया में मातम कर लेंगे, तो उनके मातम करने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, किंतु एक बात समझ लीजिए, धारा 370 हो या कश्मीर हो, ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें किसी को भी दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि जो कांग्रेस आज इसके ऊपर गलत बयानीबाज कर रही है, भड़काऊ बयान दे रही है, वो कांग्रेस ने अगर इतनी धारा 370 अच्छी थी तो जब वो मेजॉरिटी में थे तो उन्होंने उसको स्थायी क्यों नहीं कर दिया। तो जाहिर तौर पे धारा 370 अस्थायी थी, इसको जाना था, ये चली गई। तो मैं विनम्रता से सरकार माननीय प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि इस कसौटी पे आपकी राष्ट्र विरोधी, इस कसौटी पे तो आप कहीं कल वाजपेयी जी को राष्ट्र विरोधी नहीं कहना शुरू कर दें, क्योंकि वाजपेयी जी ने कैसे हिम्मत कर ली इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात करने की। वो तो राष्ट्र विरोधी बातें हो गई आपकी परिभाषा से, मैं नहीं कह रहा हूं। वाजपेयी जी की बस यात्रा तो उससे बड़ा राष्ट्र विरोध था। और आपका खुद माननीय प्रधानमंत्री, आपकी सरकार का इंटरलोक्यूटर जो बातें कर रहे थे सबसे, चाहे हरियत या चाहे गैर हुरियत, वो भी क्या राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे। और मैं अंत में आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो आपकी गठबंधन विवाह हुआ था जम्मू और कश्मीर में, जिसके विषय में आपने एजेंडा फॉर गवर्नेंस हस्ताक्षर किए थे पीडीपी के साथ, बड़े अद्वितीय कारण रहे होंगे इसके लिए। इट विल बी द गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस लिखा था इसमें। तो ये तो पूरा राष्ट्र विरोधी हो गया अगर, क्योंकि इसमें तो आपने विशेष स्टेटस की बात की है, संवैधानिक प्रावधानों की बात की है, इसकी कॉपी आप देख सकते हैं। इसमें आपने रिकंसिलिएटरी एनवायरनमेंट, बिल्ड स्टेक्स इन द पीस एंड डेवलपमेंट, सोसाइटी एक्सचेंजेस, ट्रैवल, कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस, और सबसे जरूरी कहा था कि मीनिंगफुल डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स। मैं कोट कर रहा हूं, एक भी शब्द मेरा नहीं है। साफ है इस मसले ते सियासत होना सुभाविक है, क्योंकि कांग्रेस इस नूं संविधान के खिलाफ जाके की गई कार्रवाई दस रही है, जिसलिए सुप्रीम कोर्ट च पटिशनां धड़ाधड़ दाखिल हो रही ने। जम्मू कश्मीर के मामले ते पईयां सारियां पटिशनां दी हुण सुनवाई एक साथ होवेगी। हालांकि कोर्ट ने साफ नहीं किया कि सुनवाई कदों होवेगी। जम्मू कश्मीर के मामले स्थानक सियासी पार्टियों तो इलावा कई पटिशनां पईयां होईयां ने। अजे च इन्हां सारियां पटिशन ते सुप्रीम कोर्ट कदों सुनवाई करदा है अते 370 नूं हटाउण दे खिलाफ पटिशनकर्ता की दलील दिंदे ने अते इस दा जम्मू कश्मीर की स्थिति ते की असर पैंदा है, ये तां समां ही दस्सेगा। हुण रोकदे एक होर छोटे जिहे ब्रेक लई।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। UNSC 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। जम्मू कश्मीर के मामले ते पाकिस्तान नूं एक बार फिर इंटरनेशनल हार का सामना करना पिया है। पाकिस्तान की मंग सी कि जम्मू कश्मीर मसले ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद च चर्चा की जाए, पर इस विषय ते चर्चा के लिए पाकिस्तान नूं जरूरी 9 देशों का समर्थन नहीं मिलिया। हुण इस मसले ते चर्चा तो होगी पर बंद कमरे च। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का मामला 1 जनवरी 1948 से यूनाइटेड नेशंस के सामने है और बहुत सारे रेजोल्यूशन, शायद 11 रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अभी तक हो चुके हैं। पर पिछले जब से 1971 की वॉर के बाद और शिमला एग्रीमेंट के बाद ये पूरी दुनिया ये अब मानती है कि जम्मू कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच में एक द्विपक्षीय मामला है जो भारत और पाकिस्तान को आपस में बातचीत करके सुलझाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जब भी इस मामले पे कुछ विचार करेगी तो वो इसी डायरेक्शन को या इसी पॉलिसी को दोबारा बोलेगी, जैसा कि रशिया ने बोला बड़ा क्लियरली कि ये जम्मू कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मामला है। दूसरी चीज़ है कि जो पाकिस्तान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई लड़ाई हो जाने का अंदेशा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन मैंडेट जो है, उनका मेन काम है कि पूरी दुनिया में अमन चैन रहे और कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से एक अपील इस तरह की आ सकती है भारत और पाकिस्तान दोनों को कि आप जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी मुद्दा है, उसको आपस में बातचीत करके सुलझाएं और ये इंश्योर करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई लड़ाई ना हो। जम्मू कश्मीर तो विशेष राज का दर्जा वापस लैन और उसके पुनर्गठन बाद पाकिस्तान पूरी तरह भड़किया हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अगवाई च कौमी सुरक्षा कमेटी की मीटिंग च कई वड्डे फैसले लिए गए सन, जिस कारण दोवां देशों के संबंध पूरी तरह बिखर गए ने। समझौता एक्सप्रैस नूं बंद किया गया, थार एक्सप्रैस नूं भी बंद किया गया, भारत दे नाल पूरी तरह व्यापारक संबंध तोड़े, कूटनीतिक रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ फैसला, पाकिस्तान च भारत के राजदूत ਨੂੰ वापस भेजिया, भारत की सीमा नाल लगदे एयर स्पेस ਨੂੰ बंद किया, भारतीय फिल्मां ਨੂੰ पाकिस्तान च बैन किया गया, दोवां देशों दरमियान चलती बस सर्विस ਨੂੰ भी बंद किया गया। इन्हां फैसलों के बावजूद सब की नज़र करतारपुर कॉरीडोर ते सी। हालांकि पाकिस्तान ने साफ किया कि करतारपुर कॉरीडोर का काम पहला वांग जारी रहेगा। कॉरिडोर की कोई ऐसी बात नहीं है। कॉरिडोर चल रहा है और बढ़ रहा है। दोनों सरकारें पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो उन्होंने डेट दिया उस डेट को हम करतारपुर साहब के दर्शन करने के लिए जाएंगे। इस सब के बावजूद दोवां देशों च तनाव बनिया हुआ है। भारतीय फौज मुखी विपिन रावत ने कश्मीर के लोगों नाल एकजुटता का प्रगटावा किया है। क्यों खत्म हो जाएगा? हम जनता के साथ रहेंगे, पहले भी रहते थे, बल्कि हमारा जो मेल मिलाप जनता के साथ 70 और 80 के दशक में था, वो आप वहाँ पे जानकारी से जाइए, वहाँ पता करिए किस तरह का हमारा मेल मिलाप था वहाँ के आवाम के साथ। हम उस समय भी वहाँ पे तैनात थे, बड़ी अच्छी तरह से हमारी आवाम के साथ मेल मिलाप हमारा रहता था और उस तरह का मेल मिलाप दोबारा अगर होना शुरू हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। उस समय हम बगैर बंदूक के मिलते थे, अगर हम दोबारा बगैर बंदूक के मिल सकते हैं, अगर सब चीज़ वहाँ सही तरीके से रहा तो हम यही चाहते हैं। इफ द एडवर्सरी वांट्स टू एक्टिवेट द LOC, द चॉइस इज हिज। हुण देश में चर्चा ही चल रही है कि POK नूं भी भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश की इस भावना नूं दोहराया है।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाते हैं। ये भारत का हिस्सा है और वो हमारा जो सर्वसम्मति से संसद का प्रस्ताव है कि पीओके भारत में लेना, यही हमारा काम है। ये 94 में संसद में प्रस्ताव पास हुआ था और इसलिए जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पीओके के सीट्स विधानसभा की जितनी होती है वो खाली रहेगी अभी, क्योंकि वो अलग से रहेगी। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਜੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।